occasion of Diwali, Harish went to a market with his parents. They purchased shoes and clothes for him. His mother purchased utensils, sugar, tea, and diyas. Harish observed that the shops in the market were flooded with items for sale. He wondered how so many items could be made in such large quantities. Here we are learning that Harish is a boy and he has gone to the market with his parents, and now Harish will be told by his father about the different types of industries, like the small scale, the large scale, and also like the small industries, the large industries, and some are individual industries as well. So his father explained that shoes, clothes, sugar, etc. are manufactured by machines in large quantities. So they are in large industries. Some utensils are manufactured in small industries, while items like diyas are made by individual artisans. So this is in household industry. Now, as the name suggests, in this chapter we will be learning about the importance of manufacturing, the different types of industries, the dependence of agriculture on industries, etc. etc. So first, let's learn the definition of manufacturing. So the production of goods in large quantities after processing from raw materials to more valuable products. We convert raw materials into something better. We convert them into more valuable products. For example, if we take tomato, and tomato is the raw material, and when we convert it into ketchup, we convert it into a more valuable product, and that is ketchup. So this whole process is called manufacturing. Do you know that paper is manufactured from wood, sugar from sugarcane, iron and steel from iron ore, and aluminium from bauxite? You also know that some types of clothes are manufactured from yarn, which itself is an industrial product. People employed in the secondary activities manufacture the primary materials into finished goods. The workers employed in steel factories, car, breweries, textile industries, and even bakeries fall into this category. So here we are learning about that manufacturing is a secondary activity. It is in the secondary sector, and some people are employed in providing services. In this chapter, we are mainly concerned with manufacturing industries, and manufacturing industries fall in the secondary sector. We know that the economic strength of the country is measured by the development of manufacturing industries. That means जितने ज़्यादा वो इंडस्ट्रीज होंगी उतनी ज़्यादा हमारी ग्रोथ होगी, राइट? उतनी ज़्यादा हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ आएगी, उतना ज़्यादा मनी ट्रांसफ़र, क्योंकि जब इंडस्ट्रीज आती हैं तो अपने साथ एक तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं और वो मनी लाती हैं. सो दैट्स वाई the more the industries, the more the economic strength, and we can say that economic strength is directly proportional to manufacturing industries. Manufacturing also reduces poverty and regional disparities. Now, let's learn the importance of manufacturing. Manufacturing sector is considered the backbone of development in general and economic development in particular, mainly because manufacturing sector को हम backbone बोलते हैं development की. Now we are going to tell the reasons why it's important. First, manufacturing industries not only help in modernizing agriculture. Okay, so what do you mean by modernizing agriculture? You know that पहले हम axe use करते थे, buffaloes use करते थे agriculture में, and we did not have pesticides or fertilizers नहीं थे हमारे पास. But now with the help of manufacturing industries we have tractors and we have these fertilizers, we have HYV seeds. So this is really helpful and helps in the formation of backbone of our economy, but also they reduce the heavy dependence of people on agriculture. We know कि 60% of India is dependent on agriculture. Now, अगर industries आ जाती हैं तो suppose एक जगह पे we have this house where 5 people are there. Now, अगर वो 5 लोग सेम आउटपुट निकाल रहे हैं और 3 लोग भी वही सेम आउटपुट निकाल रहे हैं, तो हम
5 minus 3 which is 2, हम 2 लोगों को कहीं और भेज सकते हैं, so extra income generate हो, है ना? Because there is a lot of underemployment in agriculture sector, in the primary sector. So what we do is the manufacturing industries help to generate employment, और जो dependence है प्राइमरी सेक्टर पे उसको रिड्यूस करते हैं. The heavy dependence of people on agriculture income is reduced by providing them jobs in secondary and tertiary sectors. So, industrial development is a precondition for eradication of unemployment and poverty from our country. This was the main philosophy behind public sector industries and joint sector ventures in India. It was also aimed at bringing down regional disparities by establishing industries in tribal and backward areas. Remember, I said this point in the beginning that it helps in reducing poverty and also helps regional disparities. So what does that mean? So the people जिन्होंने पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज बनाई है, जॉइंट सेक्टर वेंचर्स बनाए, उनका मेन एम यही था कि कहीं पे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं और कहीं पे बिल्कुल भी इंडस्ट्रीज़ नहीं है. तो व्हाट डू वी डू इज़ ट्राइबल और बैकवर्ड एरियाज़ में भी हमने क्या जनरेट किया, इंडस्ट्रीज़ को, ताकि वहाँ पे भी थोड़ी ग्रोथ हो, वहाँ पे भी थोड़ी इकॉनमी ग्रोथ हो. और उसके साथ अगर वी नो दैट अगर थोड़ी सी भी ग्रोथ होती है वहाँ पे तो हेल्थ कंडीशंस अच्छी हो जाएंगी, मार्केट्स डेवलप होने लग जाएंगी. Maybe that will help the poor people or the tribal or backward people, right? Exactly. I do not mean backward people. I mean the people that live in backward areas. So, the export of manufactured goods expands trade and commerce. अब बाहर हम कुछ मैन्युफैक्चर करके भेज रहे हैं, राइट? तो वो ट्रेड और कॉमर्स ही तो हमारी बढ़ रही है. कॉमर्स से क्या, मनी हमारा ही तो बढ़ रहा है. एंड ब्रिंग्स इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज. अब हमें ऑयल ख़रीदना होता है बाहर से, तो हमें उसके लिए डॉलर्स चाहिए. अब वो डॉलर्स कहाँ से आएंगे? जब हम कुछ एक्सपोर्ट करेंगे हमें डॉलर्स मिलेंगे और वही हम फिर दूसरी जगह लगाते हैं. तो फॉरेन एक्सचेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म द रॉ मटेरियल्स इनटू वाइड वेराइटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यूज आर प्रॉस्पेरस. तो जो लोग, वैसे हमने जनरली देखा गया है कि जो डेवलप्ड हो रही होती हैं, अभी डेवलप हो रही होती हैं कंट्रीज़, वो ज़्यादातर रॉ मटेरियल बाहर एक्सपोर्ट करती हैं. और जो डेवलप्ड हो चुकी हैं वो क्या करती हैं, वो जो फिनिश गुड्स हैं उनको एक्सपोर्ट करती हैं. नहीं, ऑब्वियसली ये भी देखा गया है कि जो फिनिश गुड्स को मतलब वो करती हैं एक्सपोर्ट, वही ज़्यादा प्रॉस्पेरस होती हैं. इंडियाज़ प्रॉस्पेरिटी, अब वो बता रही कि इंडिया प्रॉस्पर कैसे होगा, lies in increasing and diversifying its manufacturing industries as quickly as possible. Now we will learn the interdependence of agriculture and industry on each other. Agriculture and industry are not exclusive of each other, they move hand in hand. For instance, the agro industries in India have given a major boost to agriculture by raising agriculture की productivity को raise करके उसे बहुत मेजर बूस्ट दिया है एग्रो इंडस्ट्रीज ने. दे डिपेंड ऑन द लैटर फॉर रॉ मटेरियल्स एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स. तो एग्रीकल्चर को क्या चाहिए, मतलब इंडस्ट्रीज को क्या चाहिए होता है एग्रीकल्चर से? रॉ मटेरियल. और वो एग्रीकल्चर को क्या चाहिए होता है रॉ मटेरियल से? पेस्टिसाइड्स. दे वांट टू सेल देयर प्रोडक्ट्स सच एज इरिगेशन पंप्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, pesticides, plastic and PVC pipes, machines and tools, etc. to the farmers. Thus, development and competitiveness of manufacturing industry has not only assisted agriculturists in increasing their production, but also made the production processes very efficient. Manufacturing sector ने खाली assist नहीं किया agricultures को, बट उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में भी बहुत हेल्प की है. In the present day world of globalization is also one of our chapters, right? Our industry needs to be more efficient and competitive. Self-sufficiency alone is not enough.
Our manufactured goods must be at par quality in par quality with those in the international market. इसमें लिखा है कि अगर हम खुद बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम खुद सेल्फ सफिशिएंट है, एक दूसरे के ऊपर इतने डिपेंड नहीं है, बाहर से एक्सपोर्ट मतलब इम्पोर्ट के लिए डिपेंड नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हो गया हमारा काम. हमें क्वालिटी अपनी बढ़ानी चाहिए और हमें बाहर एक्सपोर्ट के लिए अच्छा होना चाहिए. ओके, हमारा एक्सपोर्ट अच्छा होना चाहिए ताकि हम लोगों से compete कर पाएँ इन द इंटरनेशनल मार्केट. हम USA, रशिया, चाइना इन सब से compete करना हमें आना चाहिए. ऐसा नहीं है कि हम बस यहाँ पे हमारा काम चल रहा है तो चल रहा है. इससे हमारी ग्रोथ नहीं होगी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की. Now we will study the contribution of industry to the national economy. Over the last 2 decades, the share of manufacturing sector has stagnated at 17% of GPD. तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कितना परसेंट है, रुका हुआ है 17% पे जीडीपी में. आउट ऑफ टोटल ऑफ 27% ऑफ द इंडस्ट्री विच इंक्लूड्स 10% फॉर माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस. जो रेस्ट 10% है वो किस में है, माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी और गैस का है. ठीक है, तो ये जो है ना ये बहुत लो है कंपैरिजन में ईस्ट एशियन इकोनॉमीज से, जैसे कि जापान और ये सब, उनसे हमारा बहुत लो है. वेर इट इज़ 25 to 35%, वहाँ पे 25 से 35% तक है. और हमारा ग्रोथ रेट भी लास्ट डिकेड में 7% पर एनम ही रहा है. और जो डिज़ायर्ड ग्रोथ रेट चाहिए होता है वो होता है 12%. The desired growth rate over the next decade is 12%. Since 2003, manufacturing is once again growing at the rate of 9 to 10%. अब 2003 से वो जो रेट है वो 9 to 10% पर एनम हो तो रहा है, और हम सोच रहे हैं कि अगर हमें 12% तक चाहिए तो हमें उसके लिए अप्रोप्रिएट पॉलिसीज चाहिए होंगी. With appropriate policies, interventions by the गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए होगा, उनको बीच में लाना पड़ेगा. एंड renewed efforts by the industry to improve productivity. Economists predict that manufacturing can achieve its target. हम अपना टारगेट जो है हमारा 12% पर एनम और हमारी जीडीपी में जो ग्रोथ चाहिए 35% तक, 25 से 35, वो हम अचीव कर सकते हैं नेक्स्ट डिकेड में. और इसके लिए हमने नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल NMCC भी बनाई है विद दिस ऑब्जेक्टिव कि हम ये सब अचीव कर पाएँ. ओके, कब तक अचीव कर पाएंगे, नेक्स्ट डिकेड तक, नेक्स्ट 10 years में. ओके, so now we'll learn about the industrial location. Industrial locations are complex in nature. अब हम इंडस्ट्रियल लोकेशन के बारे में क्यों और ये खाली जगह तो यहाँ लगा देंगे, और आप कोई फैसिलिटीज़ आपको कोई प्रोवाइड नहीं हो रही है. यहाँ पे मार्केट नहीं है, यहाँ पे पावर सप्लाई नहीं है, यहाँ पे लेबर नहीं आ सकता, यहाँ पे रॉ मटेरियल सप्लाई करने में बहुत टाइम लगेगा. तो आप क्या वहाँ पे सेटअप करोगे, नहीं करोगे ना. आप खाली पैसे एक जगह, मतलब आप खाली ये नहीं देखते कि कितना कम कॉस्ट है वहाँ की, आप और भी फैक्टर्स देखते हो. ऑब्वियसली कैपिटल, पैसे इज़ अ बिग थिंग, बट और भी अदर फैक्टर्स होते हैं, तो हम अब वहीं पढ़ेंगे. Industrial locations are complex in nature. These are influenced by availability of raw material, labor, capital, power and market. मैंने इसे लर्न कर रखा है PCALM से. PCALM. P for power, C for capital, A for availability of raw material, L for labor and M for market. Once again, P for power, C for capital, A for availability of raw material, L for labor, M for market.
मैंने ऐसे लर्न किया, आप कैसे भी लर्न कर सकते हो. सो दीज आर द फैक्टर्स. हम देखते हैं इंडस्ट्रियल लोकेशन में कि ये तो अवेलेबल होने चाहिए पास में, और ये पॉसिबल नहीं है कि सारे फैक्टर्स, लाइक बहुत रेयर होता है ऐसा कि सारे फैक्टर्स एक जगह पे हों, पर हम ट्राई तो करते हैं ना, हमें तो बेस्ट टू बेस्ट चाहिए. Consequently, manufacturing activities tend to locate at the most appropriate place where all the factors of industrial location are either available or can be arranged at low cost. Now, after an industrial activity starts, urbanization follows. हम देखते हैं जैसे लुधियाना एक सिटी है पंजाब में, मैंने कहीं पढ़ा था, प्लीज़ क्रॉस चेक. तो वहाँ पे पहले इंडस्ट्रीज आई एंड देन अर्बनाइजेशन हो गई है. नाउ इट्स लाइक अ हब. तो इंडस्ट्रीज आती हैं, उसी के बाद तो अर्बनाइजेशन होती है ना. उसी के बाद अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है? अर्बनाइजेशन मतलब लोग आते हैं, वहाँ पे सेटल होते हैं, मार्केट्स बनती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. Sometimes industries are located in or near the cities. Thus, industrialization and urbanization go hand in hand. ज़रूरी नहीं है कि खाली इंडस्ट्रीज के आसपास ही सिटीज़ आएँ, कभी कभी सिटीज़ के आसपास भी इंडस्ट्रीज आती हैं. तो दिस इज़ अ प्रोसेस जो हैंड इन हैंड चलता है. ज़रूरी नहीं है एक आए, बट ये होता है जनरली कि एक आता है तो दूसरा भी होता ही है. अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो सिटीज़ आएंगी पास में, सिटीज़ होंगी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी. ये क्यों होता है कि अगर सिटीज़ हैं तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ क्यों आएंगी? क्योंकि सिटीज़ क्या करती हैं, मार्केट्स प्रोवाइड करती हैं, या फिर सर्विसेज जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसल्टेंट्स एंड फाइनेंशियल एडवाइस एक्सेट्रा टू द इंडस्ट्री. Many industries tend to come together to make use of the advantages offered by the urban centers known as agglomeration economies. अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज जब एक सिटी में आ जाती हैं तो उसमें क्या कहते हैं, एग्लोमेरेशन इकोनॉमी. वो क्यों आती है? क्योंकि उनको फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठाना होता है, एडवांटेज लेनी होती है ऑफ द फैसिलिटीज़. ओके. ग्रेजुअली क्या होता है, एक लार्ज इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन बन जाती है. अब हम प्री इंडिपेंडेंस ईरा में देखते हैं, पीरियड में देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स होती थी वो ज़्यादातर ऐसे बनाई जाती थी जहाँ से ओवरसीज ट्रेड हो जाए, जैसे कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एक्सेट्रा. बट अब वो हर जगह पाई जाती हैं मोस्टली. कॉन्सिक्वेंटली देयर इमर्ज सर्टेन पॉकेट्स ऑफ इंडस्ट्रियल developed urban centers surrounded by a huge agriculture rural hinterland. अब बहुत सारी पॉकेट्स में भी होती हैं, और ये इनके आसपास, इंडस्ट्रीज के आसपास हिंटरलैंड भी होता है एग्रीकल्चर का. द की टू द डिसीजन ऑफ द फैक्ट्री लोकेशन इज द लीस्ट कोस्ट. अब हम देखते हैं कि कम से कम कोस्ट हो, ये तो ऑब्वियसली होता ही है. और हम क्या देखते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़. कभी कभी गवर्नमेंट ऐसे प्लान्स बोलती है कि 5 साल तक आपको ये टैक्स, एग्जांपल ले रही हूँ मैं, कि टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा अगर आप यहाँ इंडस्ट्री लगाओगे. तो हम देखते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसी दे रही है क्या, या फिर यहाँ पे लेबर कम पैसे में आ रहा है क्या, यहाँ पे लेबर अच्छे से काम करता है, स्पेशलाइज्ड लेबर है क्या. ये सब भी, वो पी काम तो करते ही है, ये सब भी कहीं ना कहीं वो फैक्टर्स होते हैं, बट वो मेन फैक्टर्स हैं 5, और ये दूसरे फैक्टर्स हैं. ओके. सो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द डायग्राम. ये जो पेज नंबर 64 पे है, इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज. पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो मैंने मार्केट बोला कि पी काम में जो एम है मार्केट, इसका मतलब ये कि कितनी मार्केट से हमारी दूरी है, कितनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमें लगेगी अगर हमें मार्केट तक पहुंचाना है. तो जितनी पास होती है उतना फ़ायदा होता है, वो तो है ना. अब हम ये मार्केट लिंकेज देखते हैं कि हमें इनपुट्स क्या देने पड़ते हैं, रॉ मटेरियल या फिर कंपोनेंट पार्ट्स, और
फैक्टर्स क्या क्या चाहिए होते हैं हमें? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो ये रॉ मटेरियल और ये सब फैक्ट्री में जाता है। उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, फिर वो मार्केट जाते हैं, फिर हमें मनी मिलता है, फिर वो मनी हम रॉ मटेरियल में लगाते हैं और ये सब साइकिल चलती रहती है। सेकेंड डायग्राम है 65 पेज पे, आइडियल लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। तो हमें आइडियल लोकेशन के लिए कॉस्ट जो हमें रॉ मटेरियल की है वो चाहिए होती है कि कम से कम हो। कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है जो हमें प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में हमें कितनी, ट्रांसपोर्ट में या मार्केट्स में देने में कितना कॉस्ट लगेगी बाहर जाने में। तो ये मार्केट से रिलेटेड हो गया, वो रॉ मटेरियल से रिलेटेड हो गया। डिसीजन वो हाँ कि वो लोकेशन कैसी है और हमारा कितना बजट आ रहा है वहाँ पे प्रोड्यूस करने में। ओके, नाउ